Good morning, all of you. Good morning, Good sir. morning, Good morning, sir. sir. Good morning, sir. Sir, on which chapter are we? Sir, we have to start chapter 3. Yes, Roman. we Sir, we have have. done some exercises. No, we have not started anything in the topic or in the book even. We have Sir, not. we have right. I Sir, think in the number we we must have written the heading of the chapter. Bas. Sir, we have done the chapter 2. Yes, we Yes, have sir. completed chapter 2, and Sir, now we have to start third chapter. we have to start the third chapter. And have I showed you some videos of multiples and factors? मैंने कुछ videos No, दिखाए? sir. नहीं दिखाए? No, No, sir. sir. No, sir. चलो कोई No, बात sir. नहीं, not required actually those videos. I will explain everything what is there in the videos. So it is better when I explain. It will be better. Don't worry. Okay, so the name of the chapter is multiples Multiple. and factors. ठीक है बेटा. Sir, multiples and factors. and factors. Okay. Factors. तो बेटा ये एंड बनाया मैंने गंदा सा, कोई बात नहीं, आप लोगों को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, एंड फैक्टर्स. ओके, so first of all multiples you have already studied in your previous classes. Maybe हो सकता है factors आपको याद ना हो सकता है पढ़ा हो लेकिन याद ना हो, कोई बात नहीं. I will explain everything from Sir, I the. remember. You remember? Sir, I remember. Okay, so first of all let's talk about multiples. See, the numbers which come in the table of 3, they are known as multiples of 3. Okay. Let's take it, for example, 3, 6, 9, 12, 15, and so on. All these are multiples of 3. If I ask you that whether 45 is a multiple of 3 or not, 45 is a multiple of 3. Sir, we are doing in book. Is 45 a multiple? नहीं बेटा, you don't have to write anything in the copy from this. अभी कुछ नहीं लिखना है ना book में ना copy में. ये I'm just introducing the topic here. Okay, sir. So tell me, is 45 a multiple of 3? आपको बताना है. It is a multiple of 3. Yes, sir, it is. Yes, sir, it it is a is. multiple of 3. कैसे बोलेंगे? 45 is a multiple of 3. How can we say that? Sir, We will check sir. by dividing. Divide करके check कर लेंगे. Yes, will? sir. हाँ, so Sir, 3 1 315 is a 3 is 45. 1, 1 13, 3 13 5, 40. 5, 13 40. 15, and 0. So this number 45, you can see that this number 45 is completely divisible by 3. Completely divisible का मतलब क्या होता है? What is the meaning of completely divisible? Sir, it means that Sir, it means that 0 will be the remainder. Very It means good. that 45 and no. इतने समझदार बच्चे कैसे आ गए हैं? इतने समझदार बच्चे, आप सबको तो पहले से ही पता है. Remainder 0. When the remainder is 0, we can say that when the remainder is 0, we can say that the number 45 is completely divisible by 3. और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहेंगे yes 45 is a multiple of 3. 45 3 का multiple है. Okay, understood? So this is the simple concept of multiples. Okay, so if I ask you what are the first 5 multiples of 4, तो क्या आंसर करेंगे आप? First 5 multiples of 4. Sir, 20, 425. 22nd, 24. बस चलिए देखिए. So first 5 multiples of 4 are, please keep your mics off.
first 5 multiples of 4 are 4, 8, 12, 16, 20. These are the first 5 multiples of 4. Okay. Okay, can you tell me the next 5 multiples of 4? इसके बाद के next 5 multiples of 4? Sir, 24, 28, 30, 36, 40. Yes. So these are the next 5 multiples of 4. ठीक है? Very good. तो multiples का concept is very easy. समझ में आ गया होगा. These are known as multiples. अच्छा. अब बात करते हैं factors. Similar to multiplication. हाँ. तो fractions की, sorry, factors की बात करते हैं. Factors. देखिए एक बात बताइए. There must be family members. आपकी family में बहुत सारे members होंगे. Okay. तो आपके फादर भी होंगे. आप अपने फादर, मतलब जो आपके फादर हैं, the one who is your father, आप उनके क्या हैं? आप अपने फादर की क्या हैं? सन है या डॉटर? सन है या डॉटर है ना? है ना? ऐसी there must be your uncle also in the family. हो सकता है किसी के अंकल हों, किसी के ना हो. तो मे बी मान लेते हैं अगर किसी के बच्चे के अंकल हैं, तो वो बच्चा अपने अंकल का क्या हुआ, या तो नीस हुआ या नेफ्यू होगा. कोई ना कोई रिलेशन इधर से भी होगा, उधर से भी होगा. जैसे फॉर एग्जांपल ए के अंकल हैं बी, ए के अंकल हैं बी. ए के कौन है? अंकल. ए मान लीजिए एक बॉय है, ए इज अ बॉय. ठीक है. और ए के अंकल कौन है? बी है. एंड ए क्या है? एक बॉय है. तो ए बी का कौन हुआ? ए बी का कौन हुआ? नेफ्यू. नेफ्यू जानते हैं? नेफ्यू उल्टा. Yes, sir. तो B is uncle of A and A is nephew of B. तो दोनों तरफ से रिलेशन है ना, कुछ है नहीं. ऐसे ही कुछ मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स के साथ भी है. अभी मैं समझाता हूँ क्या. देखिए अभी अभी हमने बात करी थी, क्या बात करी थी कि 45 3 का कौन है? 45 3 का कौन है? मल्टीपल है. मल्टीपल है. 45 is a multiple of 3. तो 3 45 का कौन हुआ? फैक्टर हो गया. Factor. समझ में आया फैक्टर क्या होता है? Yes, sir. What is the meaning of a Yes, factor? sir. Yes, sir. Clear? याद रहेगा ये? Will you remember this? Yes, sir. Yes, sir. Relation Yes, between sir. multiple and factor? Yes, sir. Yes, sir. Very good. तो फैक्टर देखिए कितनी आसानी से समझ में आ गया भाई फैक्टर क्या चीज होती है ना. चलिए लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स. ठीक है. अच्छा जैसे एक कॉमन सी मैं बात पूछता हूँ. मुझे एक बात बताओ, याद रखना कभी कभी बच्चे उल्टा कर देते हैं. मल्टीपल की जगह समझते हैं फैक्टर की बात चल रही है, और फैक्टर की जगह समझते हैं मल्टीपल की बात चल रही है. तो इसके लिए याद रखने के लिए एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ. मल्टीपल्स आर नेवर स्मॉलर देन द गिवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, तो 6 के मल्टीपल्स जो भी होंगे वो या तो 6 खुद होगा या उससे बड़े होंगे. 6 से बड़े होंगे मल्टीपल्स. लेकिन फैक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो फैक्टर्स या तो इक्वल या फिर छोटे होंगे. फैक्टर्स कभी गिवन नंबर से बड़े नहीं होते हैं, और मल्टीपल्स कभी गिवन नंबर से छोटे नहीं होते हैं. ठीक है. तो जब हम 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ मल्टीपल्स मैं 6 के लिखता हूँ यहाँ पर. 6, 12, 18, 24, 30, 36. ऐसे में कितने मल्टीपल्स लिख सकता हूँ? 6 के कितने मल्टीपल्स मैं यहाँ पर चाहूँ तो लिख सकता हूँ? Unlimited. अनलिमिटेड. कितनी अच्छी बात कही है. Unlimited. कितने समझदार बच्चे. Sir, अनलिमिटेड. अनलिमिटेड मल्टीपल्स हो सकते हैं. तो ये तो मैंने लिखे 6 के मल्टीपल्स. ठीक है. अभी हम बोल रहे थे मल्टीपल्स कितने? अनलिमिटेड. अब हम बात करते हैं फैक्टर्स. Factors unlimited. Sir, ये factors are मल्टीपल्स ऑफ limited. 6. Factors are limited. फैक्टर्स ऑफ 6. फैक्टर्स ऑफ 6 देखो मैं कैसे लिखूंगा. अभी देखना ये 6 के फैक्टर.
1, 2, 3 and 6. 1 is a factor of 6. क्या 6 1 से डिवाइड होता है? 1 की टेबल में आएगा 6? आएगा। 2 की टेबल में 6 आएगा, Yes. 3 की टेबल में भी 6 आएगा, 4 की टेबल में 6 आएगा, 4 की टेबल में नहीं आएगा। तो दैट मीन्स ये हो गया। हमको क्या लिखना है? सही है, हमको लिखना है। नहीं 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 नहीं, डोंट राइट एनीथिंग, डोंट राइट। सो एक हो गया 6 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में भी आता है। सो ये सारे जो चारों नंबर्स मैंने लिखे हैं, ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 6. So how many factors of 6 are there? कितने फैक्टर्स हैं? There are only 4 factors. तो 4 फैक्टर्स हैं। तो 4 इज अ लिमिटेड और अनलिमिटेड नंबर। लिमिटेड हो गया ना, ये लिमिट लगा दी। Limited. तो मल्टीपल्स होते हैं अनलिमिटेड एंड फैक्टर्स होते हैं लिमिटेड। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? द कॉन्सेप्ट इज क्लियर? अच्छा, एक बात और देखिए, मैंने अभी जो बात बोली थी, 6 के जो मल्टीपल्स हैं, कोई ऐसा मल्टीपल आपको दिख रहा है जो 6 से छोटा है? Is there any multiple which is smaller than 6? No, sir. Multiples में जितने भी हैं वो एक तो 6 खुद है which is equal to 6, ये तो equal है, और ये बाकी के सारे जितने भी ये सारे बड़े हैं। Am I right? All these are greater. And Yes, sir. 6 के फैक्टर्स में देखिए जितने भी नंबर्स हैं, क्या ऐसा कोई नंबर है जो 6 से बड़ा है? No, Is there any number which is this is smaller, No, sir. again is smaller, again is smaller. 1, 2 and 3 are smaller, but 6 जो खुद है वो 6 के इक्वल है। ठीक है? या तो दैट मीन्स फैक्टर्स या तो इक्वल होंगे या स्मॉलर होंगे, मल्टीपल्स या तो इक्वल होंगे या ग्रेटर। एम आई राइट? सही बताया मैंने? Sir. ये कितनी अच्छी अच्छी बातें समझ में आ रही हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में। अच्छी चीजें हैं या नहीं? बेटा प्लीज माइक्स ऑफ कर लो, थोड़ा सा शोर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, माइक्स ऑफ कर लो। वेरी गुड। सर, समर अपना बेटा, माइक ऑफ नहीं कर रहा। समर बेटा माइक ऑफ कर लो यार, तुम्हारे घर पे आके माइक ऑफ करूँ मैं? समर यार सुनता नहीं लड़का यार। समर बेटा कैसे हो ये बताओ तुम पहले। हाउ आर यू समर? अरे डांट नहीं लगा रहा हूँ, बात कर रहा Sir, हूँ। what you are saying, I cannot hear you. I am asking Samar, how are you? Sir, I am fine. Fine. Where do you live? Sir, I live in Bareilly. अरे बरेली में तो सभी रहते हैं हम लोग। हाँ, बरेली में किस जगह पर? Which place in Bareilly? What is the name of your colony, your society, whatever? Where do you live in Bareilly? Bisalpur Road in Bareilly. अच्छा, you live in Bisalpur Road. अरे वाह, क्या बात है। That means your school is near to SR. Sorry, your home is house is near to SR. Yes, sir. अरे वाह, क्या बात है। आदित्य बेटा तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? Sir, I am now in Assam. I live in Bareilly, but now I am in Assam. अरे ऐसे कैसे बरेली से आसाम पहुंच गए? क्यों भाई? Sir, my father's posting in Assam, so I have come. अच्छा, so Because your father. the online classes are going, so I have come there. So what is the occupation of your father? Army. Army. He's in army. Very good, very nice. Your father is now posted in Assam. Yes, sir. Earlier he was in Bareilly only. So what you will do? How will you manage the classes now? Sir, by online I am managing. Online you are managing. If suppose the school gets open, फिर क्या करोगे? What, sir? If suppose the school gets open, अगर स्कूल खुल जाएगा फिर क्या करोगे? कुछ सोचोगे, कोई तरीका निकालोगे, or you will live in Bareilly for some time to complete the year. Am I right?
कंप्लीट द सेशन। अगर मान लो ऑफलाइन एग्जाम्स वगैरह हो। Sir, we will come back. ओके, चलो ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा आपसे बात करके दोनों बच्चों से। ओके, सो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स हमने समझ लिए। अभी आई एम गोइंग टू राइट, डोंट राइट एनीथिंग इन योर कॉपी और बुक, अभी तक कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? अभी तक आपको कुछ नहीं लिखना था। आई एम राइटिंग अ नंबर हियर 12। Sir, I तो can't hear you. नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। अब बोल रहा हूँ। अब आ रही है बस। Yes, sir. So I have written a number 12 here. So I want you all to answer something. मुझे बताइए 12 के फैक्टर्स बताइए कौन कौन से। ओके, Sir, 1, 2, 3, 4, 6, 1 is a factor of 12. Can I say that 1 is a factor? 1 is factor of every number. Yes, sir. Yes, sir. 1, 2, 3, 4, 1, 12. 1, 2, 3, 4, 12. ऐसे ना, actually you all were giving, you all were giving answers together ना, so it was I was not able to get कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया सबको, ठीक है? Okay, so now one by one you can answer, okay? जिसको मैं पूछूंगा, you keep your mics off, okay? And जिसको मैं बोलूंगा that student will answer my question, okay? Fine, ठीक है ये तरीका। तो या अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, बट डोंट ओपन योर माइक्स अंटिल आई आस्क यू। मैं आपका नाम लेके पूछूंगा, यू देन यू आंसर, ओके? फाइन। अगर वैसे करोगे तो एक्चुअली ना तो मुझे समझ में आएगा ना किसी और को समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हो। सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे तो ओके फाइन। ओके, सो नाउ अभिमन्यु टेल मी, मैं एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ रहा हूँ। कैन आई से दैट 1 is a factor of every number? अभिमन्यु will answer. Yes, sir. 1 is a factor of every number. देखिए हमने देखा था अभी 1 6 के फैक्टर में भी था, 1 12 के फैक्टर में भी है। Is 1 a factor of 4 also? क्या 1 4 का भी फैक्टर है अभिमन्यु? Yes, sir. Very good, very good, very good. So 1 is a factor of every number. 1 तो आ गया। Okay. चलिए 12 is divisible by 2 also. बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2 is not a factor of every number. क्या 2 7 का फैक्टर होता है? 7 का फैक्टर है 2? नहीं है भाई। No, sir. Sir, 2 खाली even numbers का factor अरे होगा, sir. वाह, कितनी अच्छी बात है। 2 is a factor of only even numbers. ओके, चलिए कुशाग्र will answer my question. कुशाग्र कहाँ गया? सो जाते हो यार बीच में। Yes, sir. हाँ कुशाग्र, tell me the next factor of 12. Sir, 2. 2 तो बता दिया, 2 के बाद बताओ। Sir, 2 के बाद 3. 3 is a factor of 12. Very good. बहुत अच्छे। चलिए अंशुमान will tell next factor of 12. Sir, 4. 3 के बाद 4. 4 is a factor of 12. बहुत अच्छे। Very good, very good, very good. समर, समर यार तुम ये बड़े smart हो। समर, Sir, next is 6. the next factor of 12 is 6. Very good. बहुत बढ़िया। Okay. बेटा keep your mic off. Sir, 12. Keep your mics off everyone. आप लोग माइक ऑन रखते हैं तो बेटा वॉइसेस आपकी घर की यहाँ पे सुनाई देती है। चलिए प्रतिष्ठा विल्टन, प्रतिष्ठा बेटा
नेक्स्ट बताओ मुझे 6 के बाद, Sir, 7. नहीं 6 के बाद नेक्स्ट नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग 6 के बाद 12. नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 12 कौन सा होगा? इट विल बी 12. 7. 12 क्या, अच्छा इज 5 अ फैक्टर ऑफ 12? क्या 5 की टेबल में आता है 12? नहीं आता है, No, sir. तो 5 12 का फैक्टर नहीं है. 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12, है ना? तो 7 इज अ फैक्टर ऑफ 12, yes or no? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो इसीलिए आई हैव नॉट अटेंड 7 है. तो 7 is not a factor of 12, 8 is also not a factor of 12, 9 is not a factor of 12, 10 is not a factor of 12, 11 is also not a factor of 12. The next factor of 12 is 12 itself. ठीक है, so 12, 6 के बाद सीधा 12 आया. So these are the factors of 12. 12 has how many factors? 1 2 3 4 5 6, 6 factors. 12 has 6 factors. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मतलब ऐसी, मतलब थोड़ी सी जस्ट टू रिमाइंड यू व्हाट आर फैक्टर्स, व्हाट आर मल्टीपल्स, ये बताने के लिए मैं ये सारी चीजें पूछ रहा था. चलिए वी विल नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज. शुरू करें एक्सरसाइज? Yes. अच्छा नहीं 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 नो 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 नॉट द एक्सरसाइज. जस्ट वेट अ मिनट, नॉट द एक्सरसाइज. ठीक है, अभी नहीं करेंगे एक्सरसाइज. अभी now what you all have to do, you all open page number 26 in your page 26. Sir, open. Sir, open. Pen is not working, what happened? Sir, open. Page number Sir, I have opened. 26. Page number? Sir, I has gone somewhere. Sir, which page number? Page number 26. So पहला काम क्या करना है? You have to write the definition of multiples. Multiples heading दिख रही है आपको पेज 26 पर सारे बच्चों को? पेज नंबर 26. Can you see the heading multiples? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Multiples जो heading है इसमें can you see the paragraph which is just below the heading multiples? How many lines are there in the paragraph? 3 lines. Okay. तो multiples heading डाल के आप ये जो 3 lines का paragraph है ये नोट कर लेंगे. पहला काम हो गया, समझ में आ गया? फर्स्ट काम क्या करना है? सेकंड थिंग you will write the heading factors. Factors heading डालेंगे. फैक्टर्स हेडिंग डालने के बाद क्या करेंगे? Excuse me, sir. यस, Sir, हमने चैप्टर 2 में कॉपी में क्या क्या किया है? चैप्टर 2 में कॉपी में क्या क्या किया है? बेटा किसी बच्चे का वर्क कंप्लीट है पूरा? चैप्टर 1 चैप्टर 2 सब कंप्लीट है किसी के? Sir, I have done. One is complete. Sir, mine is also completed. इरम ने एक बार मुझे सेंड किया था ना वर्क. इरम बेटा, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir. अरे वाह, वेरी गुड. इरम, आपने मुझे कौन सा चैप्टर सेंड किया था पहले? Sir, सॉरी इरम sir, बेटा. I have sent you the first and second chapter that we have done. अच्छा, you sent both the chapters. Can you send the Yes, same? sir. Can you send the same file again? उसी को forward कर दो दोबारा से. Can you send it again? Actually मेरे फोन से delete हो गई थी वो by mistake. So, Can you send this? I have to find. Sir, can I send in the noon? I have to find. हाँ, नहीं, not now. You can send it after the classes. Okay? इरम, Okay, evening sir. में कर देना आराम से. You find the file. It must be there. मेरा जब WhatsApp खोलोगे ना, मेरा नाम सर्च करना, उसमें you will find the file in my chats only. मेरी chats में आपको दिख जाएगा the file. Okay, sir. Then you forward the file and send it to me again.
दोबारा से मुझे ही भेज देंगे, ठीक है? Okay, sir. ओके, सो किसको चाहिए था? आई विल सेंड इट इन द 5CD ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। ओके, यू ऑल आर एडेड इन द 5CD ग्रुप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अच्छा अभी हमको क्या करना है? मल्टीपल्स Added. you are not added, so you post a message in your class group only कि please add me in the 5CD group। एक डी ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें ऐड करने के लिए आप मैसेज, उसमें एक मैसेज डाल देना अपनी क्लास के ग्रुप में, प्लीज ऐड मी इन द डी ग्रुप आफ्टर द क्लासेस। ओके, अपनी क्लासेस के बाद डालना है ये वाला मैसेज। ओके, सो फैक्टर्स, सॉरी मल्टीपल्स की डेफिनेशन यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि क्या लिखना है। फैक्टर्स में देखिए, कैन यू सी द हेडिंग मल्टीपल्स? अगेन देखो वही वाली सेम हेडिंग मल्टीपल्स ऑन द पेज नंबर 26। अब मल्टीपल्स के ऊपर देखिए, आपको दिख रहा होगा अ फैक्टर इज अ नंबर, ये दिख रहा है आपको इन योर बुक? Yes, sir. फैक्टर इज अ Yes, नंबर। sir. हाँ, यहाँ से स्टार्ट करो एंड रिमाइंडर Sir. तक पूरा लिख लो, रिमाइंडर तक, टिल रिमाइंडर। आप फैक्टर से Okay, स्टार्ट sir. करेंगे एंड टिल रिमाइंडर। रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर लिखा हुआ है, फुल स्टॉप, रिमाइंडर फुल स्टॉप, Okay, sir. वहां तक पूरा आपको लिखना है। ओके, अंडरस्टूड क्या लिखना है? सबको समझ में आ गया मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स की Yes. डेफिनेशन? ओके, Yes, Sir, sir. please Yes, tell sir. multiples definition again. मल्टीपल्स में आपको पेज नंबर 26 ओपन करिए, मल्टीपल्स हेडिंग दिखेगी आपको। Yes. You will find the heading multiples. Just below the heading, Yes, there is sir. a paragraph of 3 lines. There is a Yes, sir. paragraph Yes, of sir. 3 lines. So that is Yes, your sir. definition of multiples. वो 3 lines आपको note Sir, करनी है। Sir, we have to write whole paragraph. Yes, whole paragraph. Okay, And sir. after that, you will write the heading factors. And factors की जो definition है, that is above multiples. Multiples के ऊपर देखो, Okay, sir. आपको दिखेगा Yes. a factor is a number करके, and till remainder you have to write till remainder. Okay, fine. Okay, sir. Start doing. Sir, in copy we have to write. This period gets over at what time? Sir, 11:20. 11:20. Okay. Sir, there is only two definitions we have to write. Yes, you have to write only two definitions. The first is the definition of multiples, and the second is definition of factors. And these definitions are on page number 26. Page number 26. Okay. Keep on writing.
Yes, have you all completed the work? Yes, sir. Written both the definitions? Yes, sir. Sir, Yes, yes. sir, there is no definition of second page number 26. होता बेटा मैंने बोला मल्टीपल्स के ऊपर आपको दिखेगी,